I am repeating once again what Britishers done in the field of what they contribute in the field of education. Firstly, they sanctioned 1 lakh rupee for education in India in Charter Act of 1813, in which 2 colleges were established at that time, Hindu College and Elphinstone College at Calcutta and Mumbai. Then, secondly, a controversy arose between Anglicist and Orientalist. What was the topic of controversy? That medium should be traditional or English. The medium of teaching should be traditional. Traditional means in Sanskrit or in regional languages or in English. Then Anglicist wanted that medium should be English and उन्हीं लोगों की जीत हुई. उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड हुआ वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, जिसमें कि so many colleges, universities were set up, institutes for training, the teachers were also set up. और क्या हुए? It gave a detailed plan for education, so many things. Then in 1882, Hunter Commission was appointed to look that all the works are done or not. Then Lord Curzon passed Indian University Act of 1904, according to which higher education was stopped, checked, because after getting higher education, people were becoming revolutionary. And lastly, then Vardha scheme of education initiated by Mahatma Gandhi. And at last, British appointed John Surgeon to prepare a national system of education in which 6 to 14 years of age children were getting free education, universal education, compulsory education, and ये अब तक कंटिन्यू थोड़ा बहुत पार्शियली अभी भी है. अच्छा, फिर एक बच्चा अमन राज ज्वाइन कर ले, तो सिर्फ अमन राज लिखा हुआ है. अमन राज, आप मीटिंग को लीव कीजिए और फिर से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ आइए. अमन राज निकला? नेक्स्ट. अच्छा, अब है कि व्हाट वाज द पॉजिटिव. बोलो, यू वांट टू से समथिंग? No, ma'am. Positive and negative impact of this British system of education. Positive impact was English language united the people of different region. People now rose above narrow regional prejudices. A surge of nationalism spread in all part and all section of the society. Then it created awareness about the ideals of equality, liberty, fraternity, and democracy. It created awareness about the need of social and religious reform. Educated women like Sarojini Naidu joined the national movement. और negative impact हुआ, it created a rift between English educated Indian and simple Indian. जो साधारण इंडियन थे उनके साथ जो पढ़े लिखे अंग्रेज इंडियन हो गए, उन लोगों के बीच में
एक खाई जैसी हो गई, ओपिनियन डिफरेंट हो गया, एक कोई वो अपने आप को सुपीरियर और इसको इंफीरियर समझने, इस टाइप के कुछ बीच में आ गई। इंडिजिनस लिटरेचर एंड थॉट वेर इग्नोर्ड, ब्रिटिश टेक्स्ट बुक ग्लोरिफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, उस दिन भी बताई थी। जैसे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे यहाँ के महाराणा प्रताप, हमारे यहाँ के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, या फिर और भी कुछ पुराने पुराने लोगों को ले लो, कृष्ण देव राय, वो तो एंशियंट पीरियड में हो गए, एंशियंट में हो गए। और मैंने हम लोगों के जो हीरो हुए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किए, बहुत कुछ किए, इंडिया के लिए बहुत कुछ किए। सपोज कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने की सती राइट को अंत किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, who abandoned, who started widow remarriage, because the condition of widow was very bad at that time in India. उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया कि विडो रिमैरेज एक्ट पास किया जाए, और वो पास हुआ भी। इस तरह, मतलब इस तरह के लोगों को उन लोगों ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इन लोगों को ग्लोरीफाई किसे किया? सिर्फ ब्रिटिश पीपल को किया। समझ में आ रहा है? हम लोगों को कोई इज्जत नहीं बख्शी। चैप्टर में, जो कोर्स में जो पढ़ाई होती थी, उन लोगों के बारे में ही लिखे रहते थे, वैसे ही हिस्ट्री पढ़नी होती थी, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं थी। देन सोशल इम्पैक्ट, द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक द कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडियंस। मोटा मोटी कह सकते हो कि कुछ भी नहीं वो लाइक करते थे, पहले ही बोली हूँ, दे थिंक दैट दे वेर सुपीरियर एंड वी आर इंफीरियर। उसी तरह से तो दे डिड नॉट लाइक द कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। दे कंसिडर्ड इंडियंस एज, देखो, बारबेरियन। बारबेरियन, बारबेरियन मीन्स बर्बर, जंगली, अनसिविलाइज्ड। वो हम लोग को ऐसा समझते थे। इंफीरियर and discriminated against them। समझ रहे हो? अच्छा, फिर क्या है कि English educated Indians wanted to free the Indian society from evils। अब जो अंग्रेजी पढ़ लिख गए, वो समझने लगे कि हमारी समाज में, in our society, so many evils are there। Child marriage, condition of widow women was very bad। They had no right to live freely। वो फ्री होकर जी नहीं सकते थे। उनके बाल काट लिए जाते थे, उनको व्हाइट साड़ी पहननी होती थी, उनको खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन था। नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। आज ये फास्टिंग, कल वो फास्टिंग, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर। तो बड़ी कठिन उनकी जिंदगी थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि नहीं, इन्हें भी जीने का हक मिलना चाहिए, इनके रिमैरेज होने चाहिए। और फिर विडो रिमैरेज लीगलाइज हुआ, और उन्होंने, वो सोशल रिफॉर्मर थे, अपने खुद के बेटे की शादी एक विडो से कराकर एक मिसाल कायम किया कि हमने जो जिस बात के लिए लड़ा, हमने उसको, उस सिस्टम को, उस प्रथा को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने जो चलाया कि विडो को भी जीने का हक है, तो अपने बेटे के साथ, इकलौते बेटे की शादी उन्होंने विडो से कराई। कम एज में शादी हो जाती थी। कौन पढ़ाई हो रही है? कौन ये महानुभाव कौन है? किसने पूछा? आसिफ। आसिफ, आप लेट से एडमिट होते हो। अभी हो रहा है टाइमिंग 11:19 और 11 से क्लास होती है ना? 19 मिनट लेट हो। उसके बाद ये सब पूछते हो। एडमिट होते समय आपने देखा नहीं सब्जेक्ट में मैंने कौन चैप्टर लिखा था? मैंने तो लिखा था, दिखता भी होगा, लिखा था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। ये तो फिर वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उसे पढ़ाना है, बट क्वेश्चन आंसर इसके नहीं आने हैं।
ठीक ना, तो थोड़ा सोच के बोलो, ठीक ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी है, पूछ लिया, कोई बात नहीं। चलो, हम थोड़ा सा बोल दिए तो उसका बुरा नहीं मानते। चलिए सुनिए। तो ये सोसाइटी के इविल्स मैं बता रही हूँ। तो इंग्लिश एजुकेटेड वुमेन इंडियंस चाहते थे कि उस इविल को हटाए। राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके सती राइट को बैन किया। अदरवाइज जैसे किसी औरत की हस्बैंड का डेथ होता था, his wife was burned along with her dead husband on the funeral pyre। उस चिता में अपने मृत पति के साथ उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था, और उसकी चिल्लाने की आवाज किसी के कानों तक न पहुंची। जोर जोर से ढोल ताशे नगारी बजाए जाते थे। इतनी क्रूरता थी समाज में, उन्होंने इसको इसका अंत किया। ठीक है, तो ये सब, तो ये कौन थे? राम मोहन रॉय इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। वो इंग्लिश पढ़े और वो भी सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये जो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश पढ़ के जो इंडियंस आए, they wanted to remove the evils from Indian society, और ट्रेडिशनल हिंदूज did not want, वो नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि इन लोग ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अब है कि रिफॉर्मर्स लाइक देखो, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती wanted to eradicate the evils from, दयानंद सरस्वती भी wanted to eradicate the evils from Indian society। They even compelled the British, compelled माने फोर्स किए ब्रिटिश को, to pass some laws to introduce social reforms in India। कि सोशल रिफॉर्म, वही रिफॉर्म, विडो रिमैरेज स्टार्ट हुआ, सती राइट बैन हुआ, चाइल्ड मैरिज के लिए एज डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, फिर उसमें सुधार लाकर 18 और 21 इयर्स किए गए लड़कियों के। वो बाद में, पहले कुछ और एज किया गया था और थोड़ा सा और बढ़ाकर बाद में 18 इयर्स लड़कियों का, 21 इयर्स लड़कों के किए गए। तो ये सब याद रखिएगा। दो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, एक यश एक प्रभात। इतने बोलने पर भी इन लोग, प्रभात करके तो कोई बच्चा किसी सेक्शन में है ही नहीं। कौन है ये प्रभात? कोई भी रहे। और यश तो कुछ भी नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट है, अब वही लिखा हुआ है सती। सती वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। इनह्यूमन मतलब कि अमानवीय प्रथा थी। Where a widow was forced, जिसमें कि एक विडो को फोर्स किया जाता था, to burn herself on the funeral pyre of her husband, अपने आप को जिंदा जला ले अपने मृत पति के साथ। It was abolished in 1829 by the Governor General William Bentinck at the insistence of Raja Ram Mohan Roy, a social reformer and a crusader for the cause of women। उनको crusader कहा गया। सेवियर, क्रूसेडर का मतलब सेवियर, औरतों को बचाने वाला वो इंसान हुआ। नेक्स्ट है फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड